So, hi Tanishq, welcome to the podcast. Hello, hi Meng. Hi everyone. So, yeah, can you please introduce yourself? Yeah, sure. So, hi everyone. This is Tanish Gupta, and I am the co-founder, CEO, Cybrix Labs, creator of Oasis AI, and extension uh, inside your VS Code, which is a AI plugin. So, Oasis is here to help you out, developers. So, do incorporate into your daily workflow and just do well. Yes. So, yeah, what was the motive to develop OCC? So my motive was to just reduce the pain for the developers, right? They are in the loop again and again of doing those tedious tasks. So my aim is to reduce those tedious tasks. It just gets integrated into your VS Code, and Oasis has the complete knowledge of your code base. You just need to install it and then just go with the flow. So, yeah, as a developer, I have been using Cursor AI also, Cursor ID. I have been using Copilot also. I feel Cursor is much better than Copilot right now. हाँ. It has agent mode, plan mode, right? Hmm. So, I haven't used Oasis right now. Okay. How is it different and maybe better from Okay. those? So let's first go with the Copilot. And Copilot and Oasis both comes in the VS Code. There are the extensions, right? And I have the dedicated video on Oasis versus Copilot on Cyberx YouTube channel. You can watch that also and see how Oasis is different. Oasis has the agentic modes and the powerful Next.js generations. So you can go through that video. And now coming towards the Copilot, the major difference is like the developers love their environment, right? If I am coding in VS Code, I do not want to go to the cursor ID, right? So that was my aim. So I implemented the extension directly into the VS Code so that the developers, there is no need for the developer to go to the other ID and change their environment. Yeah, you said Next.js generations. Is it specific to any language or frameworks or it works? So only the project generation, like if a developer requires to generate the complete project with a prompt, so Oasis can generate in Next.js, TypeScript or JavaScript based on the developer's requirement. But other than that, the agentic modes can help in solving any languages. Oasis can work with every language and frameworks. Only the project generation is in Next.js. Can you tell us in deep about the backend architecture, like which AI you are using maybe, and Okay. how you are able to solve the developers' pain points? Okay. So what AI does is, Oasis AI does is, like when you run the VS Code and run the extension Oasis AI, what it does, it auto detects your workspace and the projects, those are there, right? And now you need to just select any one of them with which you are working, एंड बस उसके बाद ओएसिस को उसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा. एंड नाउ ओएसिस के पास सारी फाइल्स का कॉन्टेक्स्ट है, कौन सा पोर्ट कहाँ पर है एंड विच फाइल इज कनेक्टेड टू द अदर फाइल एंड इन विच मीन्स. सो उसके बाद लाइक if there is a website and you need to add the informative nav bar that is above the nav, so आपको बस code sweep agentic mode पे जाना है and there you need to tell I require a informative bar that should appear above my nav एंड वो आपको कोड दे देगा वेयर यू नीड टू प्लेस इट एंड आपको एक इंजेक्ट का ऑप्शन दे देगा. आपका न्यू कंपोनेंट डायरेक्टली आपके वर्क स्पेस में ऐड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द ओएसिस एआई मेक्स डेवलपर्स पेन go away. Can we know about the backend architecture or maybe which AI model you are using? Okay. So currently Oasis is using the GPT models, and in the coming like weeks we will be adding the Anthropic Claude models as well. So that the UI that Oasis gives becomes more prominent and good looking. So currently the GPT is So why you started? other. So every developer maybe is using like agent mode हर कोई यूज कर रहा है आज के टाइम. मैं पर्सनली यूज करता हूँ, राइट? मैंने VS कोड का भी यूज किया, कर्सर का भी यूज किया और मैं ओएसिस भी ट्राई करूंगा. तो कैन यू टेल अस अबाउट कि एजेंट मोड कैसे वर्क करता है, हाउ यू आर यूजिंग GPT models, maybe LLMs, like
AWS provides GPT models. OpenAI also provides their API. So are you using their API at the backend, or how you are using their API? यस, आई एम यूजिंग द API. सो जैसे अगर मेरा GPT 4.1 है तो उसके APIs वो कॉल होते हैं. अगर किसी यूज़र ने GPT 4.1 सेलेक्ट करा है तो कॉल GPT 4.1 मॉडल के लिए जाएगी एंड देन रिजल्ट वही मॉडल हमें प्रोवाइड करेगा एंड देन वी विल शो टू द यूज़र. एंड जहाँ तक एजेंटिक मोड्स की बात है, जैसे हमारे ओएसएस के पास अभी कोड स्वीप, सिंगल स्वीप एंड टेस्ट फोर्ज है. सो वाई एजेंटिक मोड्स आर बेनिफिशियल? बिकॉज उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है. आप सिंगल स्वीप के पास जाओ, सिंगल स्वीप आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो एक और आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा. उसमें आपकी फाइल्स होंगी सारी, जितनी आपके अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट हैं उसकी फाइल्स. अब आपको पता है कि आपका इशू कौन सी फाइल से आ रहा है, ठीक है. सो आप जस्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओएसएस को बोलेंगे कि देयर इज सम इशू, फिक्स इट. सो वो उस फाइल के ऊपर रन करेगा एंड इशू आपको फिक्स करके दे देगा. एंड नाउ इससे क्या होगा, अगर आप जीपीटी पे जाते हैं लाइक ऑन द ब्राउज़र, सो आपको वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाओ, फिर उसको बताओ क्या इशू है, आपको ये भी बताना पड़ेगा. नाउ ओएसएस क्या करता है, वो पहले आपके टर्मिनल पे गो थ्रू करता है, वहाँ से इशू निकालता है एंड उसको सॉल्व करके देता है. अब यहीं पर अगर आप कोड स्वीप यूज़ करते हो, कोड स्वीप में अगर आप उसको सेलेक्ट करोगे, वो पूरे लाइक प्रोजेक्ट के ऊपर रन करता है, क्रॉस फाइल डिटेक्शंस करता है. सो दैट मे बी लिटिल बिट ऑफ टोकन यूसेज उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि वो देखेगा कि अच्छा इशू यहाँ से आ रहा है, फिर वो फाइल ढूंढेगा. आप सिंगल स्वीप में आप फाइल दे रहे हो उसको. बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है एजेंटिक मोड्स में हमारे ओएसएस के. फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं. एक आपने बताया सिंगल स्वीप मोड, एक आपने बताया डबल स्वीप मोड, एंड व्हाट वाज द थर्ड Uh, मोड? सिंगल स्वीप एंड कोड स्वीप. थर्ड वन वाज द टेस्ट फोर्ज. टेस्ट फोर्ज इसलिए कि आपने कोड लिख लिया, अब आपको प्रोडक्शन पे जाना है उस कोड को लेके, तो आप प्रोडक्शन पे डायरेक्टली जाए और उसमें वहाँ पे इशू आ जाए. उससे बेटर क्या है, आप उस फाइल का कॉन्टेक्स्ट टेस्ट फोर्स को दीजिए एंड इट विल गिव यू अ कंप्लीट समरी कि ये प्रोडक्शन पे जाने के लिए कितना रेडी है, इसमें और क्या क्या आप एनहांसमेंट कर सकते हैं, ये कितना % रेडी है. लाइक उसमें अगर आपका कोई फ्रंट एंड का कोड है तो वो बता देगा हाँ जी इसमें ये एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, उसको आप कर दीजिए, आपका 75% कोड रेडी है, आप ये इम्प्रूवमेंट्स करें एंड देन इट विल बी 80 to 90% रेडी. सो इससे हेल्प ये होगी कि आप अगर प्रोडक्शन पे जाते हैं एंड आपकी वेबसाइट स्लो होती है, आप उससे पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंड देन गो विद दैट. सो या तो नहीं, आइडिया कहाँ से आया ये बनाने का? आइडिया वाज लाइक दिस. आई वर्कड इन द डिलॉयट एंड उसके बाद आई वर्कड विद ISS. सो वहाँ पे वर्क करते करते आई थॉट कि बार बार मैं चैट जीपीटी पे अगर कुछ इशू आ रहा है, चैट जीपीटी पे क्यों जा रहा हूँ. सो कहीं ना कहीं ये था कि अपना कुछ ट्राई करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग दैट हेल्प्स मी आउट टू रिड्यूस माई पेन ऑफ दिस लूप वेयर आई एम जस्ट स्टक कि एक इशू आ रहा है, वही इशू बार बार आ रहा है. तो उस आइडिया को लेकर आई थॉट कि हाँ कुछ करना चाहिए एंड देन आई स्टार्टेड दिस कि अपना ही एक AI के ऊपर कुछ ट्राई करके देखते हैं. सो आपके फ्री प्लान्स भी हैं एंड पेड प्लान्स भी हैं? हाँ, यस. सो हमारा फ्री प्लान भी है एंड प्रो प्लान भी है. सो इन द फ्री प्लान वी गिव लाइक ऑलमोस्ट 20 to 30 प्रॉम्प्ट्स डेली. एंड अगर यही आप विंडसर्फ से कंपेयर करते हैं, जितना मुझे विंडसर्फ के बारे में पता है एंड ऑल्सो आई हैव रिकॉर्डेड वीडियो ऑन द कंपैरिजन ऑफ विंडसर्फ एंड ओएसिस. विंडसर्फ प्रोवाइड करता है 25 प्रॉम्प्ट्स पर मंथ, वहीं पे हम करते हैं 20 to 30 डेली इन द फ्री, ठीक है. एंड अगर आप जाते हो प्रो प्लान पर, विंडसर्फ का है $15 आई गेस एंड ओएसिस का है $9. सो यहीं पर डिफरेंस है एंड आपको विंडसर्फ के लिए उसकी आईडी पर जाना पड़ेगा एंड VS कोड में ही आपको ओएसिस मिल जाता है. सो आप वो वीडियो भी एक बार चेकआउट करना है एंड देन डिसाइड इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद ओएसिस. हैव यू डन एनी कंपैरिजन लाइक विंडसर्फ, कर्सर, कोपायलट एंड मे बी OSS में? द मेन पर्पज इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन सा AI या कौन सा IDE हमारी सॉल्व कर पा रहा है? यस. सो अगर आप विंडसर्फ वर्सेस ओएसिस AI देखेंगे साइब्रिक्स चैनल पर, अभी अपलोड हुई है कुछ टाइम पहले, उसमें उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एक चीज़ दिखाई थी. हमें एक इशू आ रहा था टर्मिनल पर
So I asked Oasis, just I have given this much कि there is some issue and solve it. So ये कोड स्वीप जो अपना एजेंटिक मोड है उस टाइम पे वो ऑन था, राइट. सो उसने क्या करा, वो टर्मिनल पे उसने अपना रन करा, तो उसने फाइंड करा अच्छा ये इशू है, एंड उसने फिर वहाँ से निकाला कि ये इस फाइल से आ रहा है, राइट. फिर उसने वो फाइल को डिटेक्ट करा और हमें वो सॉल्व करके दे दिया विद इन आई गेस 2-3 मिनट्स और लेस. योर कोड वॉज फिक्स्ड. अब वहीं इफ़ आई रिमेंबर मैंने विंडसर्फ को दिया, एंड व्हाट वाज द केस, विंडसर्फ में अगर आपकी वो फाइल खुली हुई है, इट इज़ ओपन राइट नाउ, सो वो विंडसर्फ उसको डिटेक्ट कर रहा है हाँ इस फाइल में इशू है एंड इट इज़ हेल्पिंग यू. अगर वो फाइल आपकी अभी नहीं खुली हुई है एंड कोई और फाइल है आपकी, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था. एंड हमने एक और चीज़ करी थी, हमने वही अभी एक इन्फॉर्मेटिव बार कंप्लीट एक नया कंपोनेंट बनाने का ट्राई करा था उसी वीडियो में इट इज़. तो उसमें क्या हुआ था, ओएसिस ने दे दिया एंड इट वाज द प्रीटी मच गुड यूआई, एंड ओएसिस ने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये चैट एप्लीकेशन है, तो जो इन्फॉर्मेटिव बार होगा उसमें वेलकम टू आवर चैट एप्लीकेशन ऐसा कुछ करके था. एंड इन केस ऑफ विंडसर्फ व्हाट वाज इट कि विंडसर्फ का जो आया था यूआई, उसमें जो टेक्स्ट थे वो कुछ भी विजिबल नहीं थे एंड द कलर वाज वेरी मच डिस्टॉर्टेड. सो विंडसर्फ आई फील कि आपको उसको मतलब थोड़ा और प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये फिक्स कर दो और ऐसा ऐसा. बट ओएसिस आई थिंक 1-2 प्रॉम्प्ट्स में आपको एक अच्छा रिजल्ट दे देगा. So yeah, you were. So have you used Cursor? कर्सर मैंने यूज़ नहीं करा, विंडसर्फ करा है. Yeah. कर्सर आई विल बी यूजिंग, मुझे उसकी आई थिंक वीडियो बनानी है कर्सर वर्सेस ओएसिस एआई नेक्स्ट फ्यू वीक्स. I would really recommend every developer to use Cursor once, because जब मैंने यूज़ किया I have completely switched to Cursor. I haven't used Oasis right now, but when I used Cursor, एक चाहे मेरी डीप रिकर्सन की प्रॉब्लम थी, मेरी पूरा कोड था अंदर समझने में बहुत टाइम लगता, एंड आई गेव इट टू कर्सर. मेरे 2 दिन का काम वो 2 मिनट में कर देता है, एंड आई कैन शो इट एज अ 2-day वर्क टू माई कंपनी, राइट. सो द मेन पर आप कहाँ देखते हो इन एआई मॉडल्स को एज अ, विल इट बी रिप्लेसिंग डेवलपर्स लाइक 5 years? इसमें क्या होगा, डेवलपर्स वही रिप्लेस होंगे जो एआई नहीं यूज़ करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओएसिस एआई एट दिस पॉइंट. कोई भी एआई अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप पक्का रिप्लेस होने वाले हो, बिकॉज ओएसिस एआई, नॉट ओएसिस एआई, एआई ओवरऑल एआई टूल्स या एआई इज़ हेयर टू हेल्प आउट द डेवलपर्स, एंड इट इज़ हेयर टू बिकम द बेस्ट बडी और बेस्ट फ्रेंड यू कैन से, राइट. अगर आप एआई नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप एक दिन का टास्क विद एआई आप उसको 2 या 3 दिन में करोगे. सो आपका जो भी मैनेजर हो, सीईओ, वो उसी बंदे को रखेगा जो उसको आधे घंटे में या एक दिन में उसका टास्क करके दे. सो दिस इज़ द गेम एंड यू नीड टू लाइक इंक्लूड एआई इनटू योर डेली वर्क फ्लो, तभी कुछ होगा, वरना तो ले ऑफ्स चल ही रहे हैं. अब एक और चीज़ कि ले ऑफ चल रहे हैं, राइट, एंड इफ समवन इज यूजिंग एआई, तो एक ये भी मान रहा था कि उसकी जो खुद की लॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे मेरी हो चुकी है. आई वुडंट कमिट दैट, राइट. ओके, तो क्या मुझे नेक्स्ट जॉब ढूंढने में या नेक्स्ट जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? आई थिंक मेरे हिसाब से तो लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं कम. इफ़ आई टेल 2 months बैक ओनली हुआ क्या था, जब मेरे यूज़र्स क्रॉस हो गए अराउंड 200 ऑन ओएसिस, तो उसमें एक इशू आने लगा. यूज़र्स ने मुझे जो नए यूज़र्स आए अब आफ्टर 200, राइट, तो उनके मेल्स आए, ठीक है, कि आपके ओएसिस पर हम एपीआई की जनरेट कर पा रहे हैं, बट क्योंकि हमारा एपीआई की जनरेट करके एंड आपको वीएस कोड में डालना पड़ता है ताकि कनेक्शन बिल्ड हो पाए. एपीआई की हम वीएस कोड में डाल रहे हैं बट वो कनेक्शन हमेशा फेल हो रहा है. सो मैंने चेक करा, मैंने एपीआई की डाल ली अपनी वाली, इट वाज वर्किंग, तो मैंने उन मेल्स का रिप्लाई कर दिया कि आपको एक सेशन होल्ड करते हैं हम आपके लिए एंड हम आपको करके दिखा देंगे. फिर उसके बाद सेशन तो नहीं हुआ कोई. फिर एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसने भी ऐसा ट्राई करा बट उसका भी नहीं चला. देन आई थॉट कि कुछ तो इशू है. फिर उसके बाद मैंने पूरा रन करा, 1 दिन लगा मुझे ढूंढने में. तो व्हाट वाज हैपनिंग, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला फीचर, राइट, सो वो बार बार लूप में रन कर रहा था. आफ्टर 200 जो उसके बाद वाले यूज़र आ रहे थे उनके लिए टाइम आउट हो जा रहा था, ठीक है. सो अब आप
आपका ये वाला पॉइंट कि हमारी व्हाट लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है। अब उसमें सारा खेल ही लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ का था, किसी एआई ने कुछ हेल्प नहीं करी कि कहाँ पर इशू है, क्योंकि डेटाबेस का कोड इतना बड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ से हम डेटा रिट्रीव करते हैं या डेटा स्टोर कराते हैं, जितने हमारे नेक्स्ट जेएस के राउट्स थे या नोट के राउट थे, ठीक है, उनका कोड इतना बड़ा था, तो किसी भी एआई वहाँ पे रन ही नहीं करा उसने लूप, एंड इशू समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसमें लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ काम हमेशा आएंगी, इसलिए पहले उस पर फोकस करो। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी 70% इज़ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, उसके बाद 30% यूज एआई टू लाइक बूस्ट दोज कैपेबिलिटीज़। आई थिंक this can build the future. Do you see in the future these big man companies changing their process so that don't you think कि जो AI interviews हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि how much a person can accomplish the task? कि I have talked to a lot of people, a lot of freshers also जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक कर लिए हैं, but they also say कि यार मुझे DSA अब दोबारा नहीं पढ़ना, right? But if they want to switch companies up, maybe after 1 or 2 years, they have to read DSA. So don't you think these companies should change or will change in future कि their processes की एक बंदा using AI उनके टास्क को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को कितने कम टाइम में अकम्प्लिश कर पा रहा है? ये पक्का चेंज होगा आगे। डीएसए पे तो फोकस रहेगा आई गेस अगले कुछ टाइम तक, बिकॉज डीएसए एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ किसी एक पर्सन की चेक कर सकते हो। सो डीएसए पर, कंप्यूटर नेटवर्क्स पर आई थिंक कंपनीज अभी फोकस करेंगी, बट उसके बाद कंपनीज ने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है एआई राउंड्स, जहाँ पर आपको कोई भी एआई टूल आई थिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा एंड उसके बाद बोला जाएगा कि ये वाला टास्क है, इसको इससे कंप्लीट करो। वहाँ पे आपकी प्रॉम्प्टिंग की नॉलेज चेक करी जाएगी। सो बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक आज के टाइम पे बहुत लाइक देयर इज़ अ गुड स्कोप, बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जैसे हम पहले बोलते थे कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यू नीड टू ब्रेक इनटू दी स्टेजेस देन वर्क ऑन इट, प्रॉम्प्ट भी ऐसे ही है। आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को प्रॉम्प्ट में तोड़ो, देन उतना उतना ही प्रॉम्प्ट एआई को दो ताकि वो जंबल ना करे एंड आपको ब्रेक कोड्स ना दे। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही आगे आई थिंक फ्यूचर है, बट डीएसए एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग आई थिंक कंपनीज अभी भी रखेंगी अपने करिकुलम में। बिकॉज इफ वी सी कर्सर अब वो करता क्या है, मैं उसको बोल देता हूँ कि ये फंक्शनलिटी रद्द कर दे। जो टास्क में डिवाइड करने वाला काम भी है ना, वो भी कर्सर खुद कर रहा है। इट ब्रेक्स द टास्क इनटू टू डूज एंड सिंपल से सिंपल टू डूज को वो एक एक करके अकम्प्लिश करता है और फिर मैं टास्क को बना के देता है। आई हैव सीन द एक्यूरेसी लिटरली 100%। या सो उसकी इसमें आई वुड से कि आई कैन जस्ट मैं सिर्फ एक नॉर्मल नॉन टेक मे बी एज अ यूजर मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मुझे ये फंक्शनलिटी चाहिए एंड इट इज डूइंग इट योर्स। आई डोंट नीड टू बी मे बी डेवलपर। वही अभी कुछ देर पहले मेरा वही पॉइंट था, अगर तुम एआई नहीं यूज़ कर रहे हो देन यू विल बी गेटिंग रिप्लेस्ड, इसलिए एआई को इंक्लूड करो, ठीक है, ताकि एआई हेल्प करे। अब एक ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अब चाहे वो कोडर हो ना हो, लेकिन अगर वो एआई यूज़ करके अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, मैनेजर को और क्या चाहिए, वो टास्क तो कर रहा है ना। तो इसलिए एआई को इंक्लूड करो, अभी भी देर नहीं हुई है, इट इज़ हाई टाइम, 2026 आ गया है। एआई को जितना जल्दी इंक्लूड करोगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आई थिंक अभी अवेयरनेस काफ़ी होनी ज़रूरी है, बिकॉज इफ आई सी इन माई कंपनी में भी तो मोस्ट पीपल आर नॉट यूजिंग कोपायलट में भी वो साइंड इन ही नहीं है, इस कोड को वो यूज़ करने हैं विदाउट एआई। एंड इवन इफ दोज हु नो दे डोंट यूज एआई, क्योंकि वो डेवलपर्स का एक ईगो पॉइंट आ जाता है मे बी कि यार मैं बिना एआई के अकम्प्लिश कर पा रहा हूँ उस टास्क को। मे बी मैं इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि मेरे स्किल्स लो जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आई वांट टू क्रैक कंपनीज। बट या ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है ये मेरा एक गुड पॉइंट ही कहूँगा कि आई कैन अकम्प्लिश 2 दिन का टास्क में भी आधे घंटे में मैं अकम्प्लिश कर लेता हूँ। कैन यू शेयर मोर लाइक यूज़र फीडबैक शेयर करोगे थोड़ा सा, लाइक आपके कस्टमर्स का कोई फीडबैक आया हो या फिर उनके यूज़ केसेस जिसमें उन्होंने उनको हेल्प मिली हो? हाँ, यस, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड उसमें यूज़र के रिव्यूज़ हैं वहाँ पर।
सो जितने अभी तक हमारे यूज़र्स हैं उसमें से जितनों के रिव्यूज़ आए हैं दोज आर हैप्पी यूज़र्स। तो उसमें काफ़ी रिव्यूज़ हैं, लाइक कोड स्वीप जो हमारा एजेंटिक मोड है दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि वो क्रॉस फाइल डिटेक्शंस कर देता है। एंड आपकी किसी भी फाइल में कुछ इशू हो तो वो लिंक ढूंढ के, अच्छा उस फाइल में इशू है एंड इस फाइल पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपको फिक्स करके दे देगा। एंड जहाँ तक बात है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? यूजर फीडबैक आई वाज आस्किंग कि इंटरेस्टिंग कस्टमर स्टोरीज आप शेयर करेंगे, राइट? किसी कस्टमर ने कैसे यूज किया आपके ओएसिस एआई को टू सॉल्व देयर डेली टास्क और मे बी अ कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ, यस। सो एक कस्टमर का रिव्यू आया था सिंगल स्वीप पर हमारे। तो उनका ये रिव्यू था कि जो सिंगल स्वीप है, जैसे उनको बहुत बेनिफिट करा है उसने, क्योंकि सिंगल स्वीप में क्या होता है, आपका यूआई बना हुआ है। उस कस्टमर ने क्या करा कि अब ये वाले कार्ड को मुझे बस 3D कार्ड में कन्वर्ट करना है, एंड हमारे सिंगल स्वीप ने उसको एक बढ़िया सा यूआई विद इन जस्ट 2 प्रॉम्प्ट्स, उसने 2 प्रॉम्प्ट करे। फर्स्ट वन कि 3D में कन्वर्ट करना है, एंड नेक्स्ट वन कि उसका थोड़ा सा फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर दे। सो 3D में कन्वर्ट करने के लिए उसको आई थिंक पूरा जो दिन लगता उसने वो 10 मिनट में कर लिया है। सो ये एक हमारे पास रिव्यू आया था। एंड एक आया था कि डीबी कनेक्शन नहीं बन रहा था उसका, डीबी में उसका डेटा नहीं सेव हो रहा था। सो दैट टू उसने सिंगल स्वीप यूज़ करके एंड इट हेल्प्ड हिम, एंड आई थिंक 10-15 मिनट में उसका डीबी अप था एंड डीबी में डेटा जा रहा था। सो या कमिंग टू ओके, डू यू नो लाइक अभी एआई के बारे में ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है, यू हैव बिल्ट अ कंपनी, तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट एलएमस, लाइक कैसे वर्क करते हैं एट हाँ, बैक एंड? सो वी आर ऑल्सो इन थॉट प्रोसेस की इन फ्यूचर साइब्रिक्स लैब्स अपना एक LLM लॉन्च करे, ताकि हमें जीपीटी या फिर क्लॉड इन मतलब कि फॉरेन LLMs पे डिपेंड ना होना पड़े, इन हाउस हम एक LLM बनाए। सो द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द LLM इज़ कि उनको एक डेटा दिया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन विच दे आर ट्रेंड, ताकि जब हमारे पास कोई प्रॉम्प्ट आए वो उस प्रॉम्प्ट को रीड करके क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, कौन से वेक्टर पॉइंट्स सबसे क्लोज हैं, देन उसका हमें आउटपुट मिला जाता है। दैट इज़ द LLM, लाइक अगर हम मोटा मोटा बोलें। सो दिस इज़ द LLM। ये तो फ्यूचर है। सो इसलिए इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए और टूल्स लाने चाहिए, AI में वर्क करना चाहिए, वरना इंडिया विल स्टे बैक फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, US प्रोग्रेस कर रहा है, AI इंडिया को भी AI में करना चाहिए, क्योंकि AI ही फ्यूचर है। 2026 में ही आप देख लोगे कि कितना चेंज आ जाएगा। यस। बट या ऑब्वियसली इंडिया को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली चाइना हैज ओवरटेकन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन चाइना इज अहेड इन एआई में भी। इट हैज प्रोवाइडेड अस मे बी अ लॉट ऑफ मॉडल्स। किमी एक मॉडल है जो कि सोफा में एक साथ ले रहा है 50% एमबी की, राइट? डीप सीक दिया चाइना ने आपको, लाइक वेरी डीप थिंकिंग मॉडल होता है, राइट? एंड यूएस ने तो ऑब्वियसली यूएस का किंग ऑफ सॉफ्टवेयर मे बी आई वुड से। सो ऑब्वियसली इंडिया इज far behind me. So far पीछे है चाइना से in manufacturing also, in AI also. So हाँ, जो कि करेक्ट बैकलर्स वाला बच्चा उसको एंड देन गिव टू OSS AI एंड वो आपको बना के देगा। एंड मे बी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, कंपनी बिल्ड करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आए? कंपनी बिल्ड करते हुए सबसे पहला चैलेंज आया, आई वॉज नॉट नोइंग कि VS कोड में एक्सटेंशन कैसे बनती है। सो सबसे पहला चैलेंज वो था, पहले उसको ओवरकम करा, एक नॉमिनल सी एक्सटेंशन बनाई, देन उसका पूरा बैकएंड और ये वो सेटअप करके द नेक्स्ट थिंग वाज लॉन्चिंग, बिकॉज लॉन्चिंग अ कंपनी इन इंडिया इज़ हेडेक। तो उसको टैकल करा, देन उसके बाद बस फ्लो में अभी लाइक इट इज़ गोइंग। If you talk about launching is a company in India is a totally headache. Why headache likely? हेडेक बिकॉज ऑफ लाइक गवर्नमेंट रूल्स एंड जो काफ़ी हमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड इसको फॉलो करना पड़ता है, तो दैट इज़ समथिंग। So thanks Tanish, thanks for coming to our podcast. Any final message to our audience if you which you want to give, maybe you can give. थैंक यू मानव। एंड मेरा तो हमेशा वही सजेशन रहता है कि जितना जल्दी हो सके डू इंट्रोड्यूस AI इनटू योर डेली वर्क फ्लो, खास करके OSS AI, ताकि योर प्रोडक्टिविटी बूस्ट एंड वो आपको हेल्प करे टू डू योर डेली टास्क। यस। So thanks everyone. Thanks for listening us, and I hope you learned a little from our conversation.